We are talking about how to make sure that you have the highest advantage, highest probability of qualifying 2027 exam. The problem with most of the aspirant is they know what to do. They have all the right books. They have all the mock tests with them. They have been revising, making notes. They are aware of that. But when it comes to actually applying those things, actually drilling it down to daily preparation, that's where most of the aspirant fail. We need to follow a rule-based system. We don't want to follow some intuition or instinct. We don't want to prepare for UPSC thinking, आज quality पढ़ने का मन है तो ये करते हैं वो करते हैं. We don't follow instinct, we will follow exam logic. Total there are 288 micro themes. That was the topic also. But if you cover them, your syllabus is done. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. Let's start. We are talking about how to make sure that you have the highest advantage, highest probability of qualifying 2027 exam if you go with micro theme approach. The problem with most of the aspirant is they know what to do. They have all the right books. They have all the mock tests with them. They have been revising, making notes, everything what needs to be when it comes to strategy, they are aware of that. But when it comes to actually applying those things, actually drilling it down to daily preparation, that's where most of the aspirant fail. Like it's really a tough journey. UPSC is not a rosy path. It's going to be very tough. There are moments where you don't want to prepare anymore. There are moments where you come very close to qualifying the exam, still you're not able to make through. So those are the unasked questions that we will answer today, right? And meanwhile, when we don't see success, we start to move away from the exam, and there is a lot of noise in UPSC, like ye bhi pad lo, wo bhi pad lo, that course, this course. I am here to simplify everything. I'm today here with this session. All of the doubts will be cleared. You will have a lot of clarity about how do I go on a daily basis, weekly basis, monthly basis, etc. And how do I follow micro theme? How do I pick up each micro theme and complete the whole loop, cover it in depth, and also assess myself and eventually move on to the next micro theme, right? We need to follow a rule-based system. We don't want to follow some intuition or instinct. We don't want to prepare for UPSC thinking, आज quality पढ़ने का मन है तो ये करते हैं वो करते हैं. We don't follow instinct. We will follow exam logic. The whole session is based on exam logic, right? Initially, I'll just quickly give you the overall timelines. Today, like as of now, we are in December, right? We want to start first phase of the preparation for next 6 to 10 months. We want to focus on our optional and mains preparation. GS 1, 2, 3, 4, and all the big 4 subjects, history, economy, geography, polity, and your optional, whatever your optional subject is, right? So that is our phase 1. We will cover it from our NCRTs, we'll cover it from our standard books, right? And everything will be looked from the lens of micro theme. So GS 1, 2, 3, 4, all the micro theme we'll have to cover from December to mid-April, okay? Including your optional, we will make notes, etc. One thing that you have to notice here, that whatever the topic we are covering in these 4-5 months, we are covering the topics which have overlap with the prelims. Why? Because once the next year, because all of you are attempting in 2027, once next year prelims comes close, you at least can attempt the paper. Don't go actually attempt the paper. Once you get the paper at your home, you try to understand how many questions are making sense to you. Can you even attempt? How many questions did you get right? That gives us some kind of reality check. I'll repeat again. You start your preparation with the subjects and topics which most of the times overlap with your prelims. Simple way is to say, like, pick up those micro themes which overlaps with prelim syllabus and main syllabus both, right? We have done that in the prelims and mains micro theme document you can find. Once next year's prelims is done, this is our main timeline. So what we are doing from June, you can see mains micro theme. We are reading Smash, X Factor notes, right? And then we are till October, we are trying to cover all the mains micro theme. From October to January, we will shift our preparation to prelims or mains micro theme, but optional. So in this period, once you have done the main syllabus, you will be doing a lot of mock tests. You will be doing a lot of answer writing, etc. Because that is also, and same for optional. But idea is from June till January next year, these 6, 7, 8 months, 4, 5 months, we need to focus on our answer writing and GS coverage for mains and then optional. Okay?
Before January, we are not focusing on prelims. I'll repeat, we'll start our preparation from mains micro theme, starting with subjects and micro themes which have overlap with prelims. We'll try to attempt next year prelims. Post that, we will come back to our mains micro theme, right? And optional. We'll do a lot of answer writing for essay, for GS, for optional, etc. till January 2027. From here on, we cannot afford to study optional. We cannot afford to study mains anymore. We should shift our preparation to completely prelims. Prelims is getting tricky, okay? So from January to May, we will do a lot of mock tests. We'll cover all the prelims micro theme. We will do all the note making, revision, one pager, and lot of assessment like mock tests, etc., including CSAT preparation. May, you will have your first prelims, 2027. You'll give your prelims. You'll have again 2 months of gap. Wahan pe you'll be doing answer writing and nothing else. You'll do a lot of smash mains test. PTD means post test discussion. After each test, you should be sitting with someone to analyze your test and mistake. Nothing, no new study, etc., nothing else except current affairs. Just focus on answer writing. You have already covered your syllabus for mains last year, this year, everything. यहाँ पे सिर्फ आंसर राइटिंग है, रिवीजन है, नोट मेकिंग है, करंट अफेयर्स कुछ नया है तो वो है, एंड मेंटर के साथ डिस्कशन है. Please do not be in a situation in your first attempt where you are studying something new in these 2 months. You can't do that. You give your mains, shift to your interview preparation. So you can see first few 10 months, we are focusing on understanding, reading the syllabus, acquiring content, knowledge, etc. We are understanding the syllabus in depth, basis micro theme. Second year, we are focusing more on assessment. When I say second year, matlab the year in 2026, right? So the second half of 2026, you can see we are focusing on answer writing, mock tests, etc. Second phase of preparation, second part of the preparation is going to be always about assessment. Without assessment, I mean, we are just acquiring knowledge. There's no application. First is just chasing depth. You are reading a lot of content, etc., covering all the micro theme. We will drill down from here. ठीक है? अब हम समझेंगे कि हर एक micro theme करना कैसे है. Let me simplify. All of you have seen the UPSC syllabus. It is how it looks like. It's extremely abstract. ठीक है? उसमें कोई ट्रेंड नहीं है कि कौन सा सिलेबस का पार्ट ज्यादा आ रहा है, कौन से किस नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं. इट इज जस्ट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, द कमीशन प्रोवाइड्स, कि ये यहाँ से पूछ सकते हैं. यू कैन टेक इट एज अ बाउंड्री लाइन. ठीक है, वो भी ब्लर है, बट यू कैन से कि इतना दिस इज द स्प्रेड ऑफ सिलेबस. बट when it comes to its utility for day-to-day preparation, it is almost zero. क्योंकि जब आपको पता चल गया कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट आ रहा है, बट इट डजंट आंसर क्वेश्चंस लाइक कि फंडामेंटल राइट से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, किस फ्रीक्वेंसी से आ चुके हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ दोस क्वेश्चंस, अंडर फंडामेंटल राइट कितनी 3-4 चीजें पूछ रहा है वो नहीं पता है आपको. सो लॉट ऑफ थिंग्स यू डोंट नो, एंड दिस इज जस्ट वन टॉपिक. You also have to list down all such topics basis how many questions have been coming from each topic, and then make the list in a very ascending or descending order कि यार सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे आ रहे हैं वो सबसे important theme है. That is, you will not find that in UPSC syllabus. Hence, we need certain documents which is called micro themes. सबको पता होगा, all of you must have downloaded this already. If not, you can find the link below. You'll find the link in the chat. You can download from there. So total there are 288 micro themes. That was the topic also for today's session. There are only 288 micro themes that we all need to cover. If you cover them, your syllabus is done. You will be able to complete your syllabus. So prelims and mains both, right? Now all of these people, this is the system I was talking about. Like, don't study based on instinct, follow the exam logic. All of these people who have been given, these are fresh names. These people are giving interview right now, like UPSC interview. Their interviews are scheduled. All of these people, most of them are giving interview for the first time because it was their first attempt. Every one of them these are just few names, different stories, but they all of them followed the same system, which is derived from micro theme, and that's what I'll try to tell you, right? So, like I said, syllabus is extremely abstract, right? If you need any kind of clarity कि पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, we need to have a clear idea, जो कि हमको micro theme से ही मिलेगा, ठीक है? Then we need to understand behind each micro theme we have PYQs. So we need to solve those PYQs to understand कि हमसे हमारी accuracy क्या है, and prioritization करना पड़ेगा, right? Let's start. So the idea is कि सिर्फ ये download करना, lot of people, student think कि बस I have a PDF of prelims, micro theme, वो enough है. That's just few percent, like 10% of the whole job.
एंड मैं बाकी का 90% आपको क्लियरली अच्छे से समझा दे रहा हूँ आज. So that is the way we need to go. So prelims micro theme, mains micro theme, if you don't have, please download. And following this system, the system that these people followed, this is the system that we need to follow, and making sure ki we will stick to the micro theme basis, micro theme based preparation only from here on, right? That is very important because that is the single most important question and decision that you will take, right? जब आप नहीं करोगे तो दो गलतियां होनी है एज अ बिगनर, ठीक है. आपको ना डे जीरो का एडवांटेज होना चाहिए, राइट. यू आर ऑल इफ यू आर फॉलोइंग माइक्रो थीम बेस्ड अप्रोच अ सिस्टम, आपका डे जीरो पे ही विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर यू हैव एडवांटेज ओवर अदर एस्पायरेंट क्लियरली, ठीक है. पहला, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे यू विल ओवरलुक की माइक्रो थीम्स, राइट. आप सिलेबस को बिल्कुल लीनियरली पढ़ने लगोगे. पहले ये टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने 2 महीने एक महीने लगा दिया, आपको पता है वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे. You can see the number of questions in mains and prelims from polity and these subjects. तो आपके सब्जेक्ट की भी प्रायोरिटी डिसाइड है कि मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आप सिर्फ सिलेबस को देखोगे तो प्रॉब्लम है, राइट. अंडर पॉलिटी दीज आर द माइक्रो थीम्स. यू कैन सी ये पॉलिटी का है, ये इकोनॉमी का है, ये ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री. आई मीन आई कैन कीप गोइंग ऑन. दीज आर द माइक्रो थीम्स, राइट. इन माइक्रो थीम्स में भी यू कैन सी फ्रीडम मूवमेंट पर्सनालिटी से 23 क्वेश्चन आ चुके हैं. विल यू कवर दैट और दिस सत्याग्रह? सो यू नो लाइक ऑलरेडी आरबीआई फंक्शन मॉनेटरी पॉलिटी से 36 क्वेश्चन आए जा रहे हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ appearing questions again from RBI and monetary policy is way higher than question coming from indexes, digitalization of economy, investment, bonds, inflation. So that's the whole point. Like you'll invest lot of time in these themes than the themes which have been appearing less. And ये 2009 से 2025 तक का डेटा है across subjects, ठीक है. So that is important. Like I said, there are only 288 micro themes. We have 177 micro themes in our mains paper, and then we have 111 in micro themes in our prelims, ठीक है. And these are the micro themes that we need to cover. And around 37 common है, जो मैंने बोला था कि दोनों में prelims and mains दोनों में common है, right? So we know as of now quickly कि हमको सिलेबस से आगे बढ़ के हमको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है जहां से मैं ये समझ पाऊँ कि यार कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने चाहिए. वो हमने एस्टेब्लिश कर लिया है. अब मुझे पता चल गया माइक्रो थीम है. हाउ डू आई कवर दोज माइक्रो थीम इन डेप्थ? द सेकंड मिस्टेक दैट लॉट ऑफ एस्पायरेंट मेक is that they just pick up a document, they see ये पढ़ना है, but they don't cover that micro theme in depth in the way that they are supposed to do, ठीक है. prelims का एक एग्जांपल लेते हैं. I said there are 111 micro themes. आपको करना क्या है? You have this document, ठीक है. माइक्रो थीम का ये पॉलिटी का है, बट यू नो फॉर एग्जाम्पल आप फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज माइक्रो थीम पिकअप कर रहे हो, ठीक है. आपके पास एक डेली का टारगेट होना चाहिए, ठीक है. आप जब फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को पिकअप कर रहे हो तो उसी माइक्रो थीम डॉक्यूमेंट में यू विल हैव अ PYQ. Attempt those PYQ so that you know the accuracy. After you have read Lakshmikant, after you have read Polity NCERT, you should be able, for the first thing you want to do, you want to pick up, let's say for example, you pick up fundamental right and duties as a micro theme because you know 20 questions have been asked. So almost हर साल 1-2 क्वेश्चन तो आने ही है, ये आपको पता है. That's why you're not picking these topics, tribunals and all. You're picking this one because इसकी probability ज्यादा है. तो ये prioritization हो गया सबसे पहले सिलेबस का. Pick up in the same document, you will find PYQs. So attempt those PYQs. Let's say there are 30 PYQs or 20 PYQs. You are only getting 5 right. मतलब आपका concept ही अभी clear नहीं है. Clearly you realized. We are going assessment first. ठीक है? Once and have a daily target of covering this. ठीक है? So attempt PYQ for accuracy. This is for geography. We want to remove all the guesswork and then we want to make sure that each time we are attempting a micro theme, each time we are attempting PYQs, we are making progress, etc. ठीक है. Now, like I said, सिर्फ PDF डाउनलोड कर लोगे तो that only solves 10% of the problem. We want to solve the other 90%. We need to close that loop. ठीक है. Let's start. I hope all of you are able to see this. If you see the starred questions, जो same star है, they are same kind of questions. So this one, then you have this one here, this one. You can, these are same kind of questions. मतलब the nature of questions is exactly the same. For example, इसमें river system के बारे में पूछ रहा है वो, right? इसमें वो dams वगैरह और lakes वगैरह के बारे में पूछा है. This one, again artificial lake, right? So what we are doing, I'm taking an example from geography. River system is a micro theme in geography. ठीक है? 25 questions आए हुए हैं river system से.
आई एम ट्राइंग टू टीच यू और टेल यू कि एक माइक्रो थीम को पिकअप करके कवर कैसे करना है। 25 क्वेश्चंस आए हैं, मैंने पिकअप करा, फिर मैंने देखा ये एक्चुअल पीवाईक्यूज हैं। मैंने ये देखा कि एक्चुअली में रिवर सिस्टम से क्वेश्चंस किस नेचर के आ रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि यार देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन जिनको मैं बकेट कर सकता हूँ अंडर अ डायमेंशन, ठीक है। सो दीज आर सेम नेचर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस, इसमें कौन कौन से डायमेंशंस है? पहला, समटाइम्स यूपीएससी इज आस्किंग द ओरिजिन एंड रूट्स और द स्टेट्स, समटाइम्स दे आर आस्किंग ट्रिब्यूटरीज, समटाइम्स दे आर आस्किंग लेक्स एंड डैम्स एंड रिवर्स एटसेट्रा, राइट, फ्रेश लेक्स एंड सलाइन लेक्स एटसेट्रा। फिर ग्लेशियर वगैरह पूछ ले रहा है, वाटरफॉल एटसेट्रा पूछ रहा है रिवर्स के अराउंड। मुझे पता है कि सो डोंट डू पीवाईक्यू जस्ट लाइक सही कर दिया तो सही है, ट्राई टू डिकोड कि वो कौन से डायमेंशंस में पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दोस क्वेश्चंस। सर सम ऑफ द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज दिस, नाउ यू कैन रीड अगेन, यू विल रियलाइज, क्विकली जस्ट गिव इट अ रीड। देखो यहाँ पे रिवर्स पूछ रहा है, ये डैम पूछ रहा है, यहाँ पे यू कैन सी हियर अगेन ईस्टवर्ड फ्लोइंग एटसेट्रा, अगेन देयर इज अ आर्टिफिशियल लेक दे आर आस्किंग। You can bucket all these PYQs under a dimension, certain dimensions I have written. आपको हर माइक्रो थीम को ऐसे करना है। PYQ भी आपके इसी डॉक्यूमेंट में है, so you don't need to go anywhere else, ठीक है। You can just find PYQs in the same document. Again, रिवर सिस्टम में लेवल 1 पे सिर्फ रिवर्स ओरिजिन पूछ रहा है। देखो ओरिजिन, अगेन above rises from ईस्टर्न घाट, अगेन अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होती है, यू कैन सी हियर हिमाचल प्रदेश से। तो ओरिजिन और स्टेट्स के बारे में ये सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन है। तो अगली बार जब आप कुछ रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, आपको पता है यूपीएससी स्टेट्स और ओरिजिन पे क्वेश्चन पूछता ही है रिवर सिस्टम में। तो भले ही उन्होंने ये सब पूछ लिया, इसके बियॉन्ड और क्या पूछ सकता है, आप वैसे प्रिपेयर करोगे। जस्ट राइट यस अगर इतना समझ में आ गया है व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज यू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट पीवाईक्यू, यू अंडरस्टैंड कि किस नेचर का पीवाईक्यू है। यू आर मेकिंग योर प्रिपरेशन मोर प्रेडिक्टेबल, बिकॉज नाउ आपको पता है इस नेचर का क्वेश्चन तो आता ही है, ओरिजिन और स्टेट्स तो पूछता ही है। सो नाउ यू डोंट नो जस्ट कि रिवर में पूछता है, यू ऑल्सो नो रिवर में क्या पूछता है। आर वी क्लियर टिल हियर? और दे कैन आस्क अबाउट लेक्स एंड डैम्स, दे कैन आस्क अबाउट वाटरफॉल, रिवर्स। सो दिस इज आवर लेवल 1, ठीक है। नाउ फॉर लेवल 2 अ लिटिल बिट मोर complicated stuff by UPSC. So now they will ask geographical phenomena, they'll ask some other important critical information like trivias etc. Just read the questions and you'll get what I'm saying. तो यहाँ पे वो पूछ लेगा कि रिवर फ्लो तो हो रहा है लूनी, बट वो कहाँ से हो रहा है? सो इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कंबर, गल्फ ऑफ कच्छ, फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेस इनटू ये, ऐसे करके। सो देयर विल बी सम मोर ट्रिवियाज, नॉट जस्ट नॉर्मल रिवर क्वेश्चंस। ये सेकंड लेवल है। ये थर्ड लेवल का डायमेंशन है जहां पे ट्रिब्यूटरीज पूछ रहा है। सो यू कैन सी सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन है। ये तो 2024 है, ये 2021 में पूछा है, बट नेचर ऑफ क्वेश्चन सेम है, ट्रिब्यूटरीज, राइट। एंड दिस इज आवर फ्लैश नोट्स अंडर विच वी हैव आवर सुपर मैप्स। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इज at every river system it is not just tributaries or some, but you will have all the other information you can see. So अगर उसके अराउंड कोई रामसर साइट है तो you will get it, कोई ग्लेशियर है तो you will get it, कोई नेशनल पार्क है तो you will get it. So in one map there is all the important trivias and information. आपको 5-6 मैप्स की जरूरत नहीं है. This is in our flash notes. ठीक है. Once you have understood these dimensions, the question is इसको cover कहाँ से करना है, and the answer is flash notes. These are our flash notes. अब आप बस पढ़ते जाओ, सोर्स, कोर्सेस, ट्रिब्यूटरीज, यू विल रियलाइज कि जो डायमेंशंस यूपीएससी पूछ रहा है फ्लैश नोट्स में वो सब कुछ है. रिवर्स एंड स्टेट्स ये है, ड्रेनेज सिस्टम ये है, सिटीज ये है, नेशनल पार्क सेंचुरीज ये है, डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स पूछ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है, कंजर्वेशन साइट्स, इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स, सब कुछ लिखा है. स्टेट्स पूछा था वो है, ट्रिब्यूटरीज एंड सोर्सेस सारे एक जगह लिस्टेड है. सो दैट्स द होल पॉइंट, लाइक यू डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेट योर प्रिपरेशन. अगेन जो यूपीएससी ने डायमेंशंस पूछे हैं, ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड इन फ्लैश नोट्स. आई कैन जस्ट कीप गोइंग. रिवर्स एंड स्टेट्स, सिटीज, नेशनल पार्क्स, डैम्स, लेक्स वगैरह सब कुछ है. ठीक है, बिकॉज यू नो दीज डायमेंशंस, नाउ यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि यूपीएससी आगे और क्या पूछ सकता है. वो भी आप फ्लैश नोट्स में कवर्ड है. सो दैट ऑल्सो इज कवर्ड इन द फ्लैश नोट्स. सो फॉर एग्जाम्पल वो ये सब पूछ सकता है, हिस्टोरिकल साइट्स किसी रिवर के बाजू में, river making border between two states, water sharing between two states, conflicts between two states, ये सब भी पूछ सकता है. And that also you don't need to research or do cover from anywhere else, because होगा क्या, majority of this जो easy question है, इसमें से जो भी easy question पूछ रहा है यूपीएससी, easy level के question है या medium level के question है, those things you can trace back to your standard books. But जो hard questions हैं you can not trace
to that's why they are hard. You'll not be able to trace to standard books etc. even in current affairs. तो उसके लिए वो those answer to those in content for even the hard question you will find in flash notes. Hence you'll be able to predict. तो पढ़ाई कैसे करनी है? First you'll pick up a micro theme, जैसे हमने रिवर्स सिस्टम लिया है, ठीक है. हम उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. अगर हमारी एक्यूरेसी अराउंड 60 to 80% आ रही है, मतलब हमें कंटेंट तो आता है, बस क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हमने डायमेंशंस कवर नहीं करे. अगर उसके नीचे है तो देन आपको कंटेंट का ही प्रॉब्लम है. यू नीड टू रीरीड. वील फिगर आउट डायमेंशंस, ठीक है. इजी, मीडियम, हार्ड, डिफिकल्टी में डिवाइड करेंगे, ठीक है. जो इजी है वो तो आपको मिल रहा है आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में. मीडियम और हार्ड आपको फ्लैश नोट्स में मिलेगा कंटेंट, ठीक है. you'll make notes etc. and then you'll attempt some dominate का mocks या जो भी आपके पास PYQ के mocks है या पहले के कोई mocks है. attempt the mocks, logical जितना भी नॉलेज आएगा उससे लॉजिकल एलिमिनेशन करो, आगे बढ़ो, एंड देन अपने 1 पेज नोट्स बनाओ, रिवीजन करो. दिस इज द वे यू हैव कवर्ड 1 माइक्रो थीम रिवर सिस्टम कंप्लीटली. ऐसे पढ़ना है सिर्फ ये नहीं कि बस यहां से एक माइक्रो थीम देखा, रिवर सिस्टम अपनी स्टैंडर्ड बुक से रिवर कर लिया एंड बोल दिया कि मेरी रिवर हो गई है. यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व ऑल द डायमेंशन. जस्ट फॉर योर बेनिफिट आई टेक वन मोर एग्जाम्पल विच इज फॉर पॉलिटी. ज्योग्राफी लिया था हमने. पॉलिटी के क्वेश्चन देखो. आई एम पिकिंग अप अ माइक्रो थीम, 2 माइक्रो थीम, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स है. जो सेम स्टार है, दे आर सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन. सो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है. आप देख भी सकते हो क्विकली. आर्टिकल्स ही पूछ रहा है, इसमें भी आर्टिकल है, इसमें भी आर्टिकल्स है, इसमें भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है. एंड जो यहाँ पे है यू विल सी वहां पे फंडामेंटल राइट्स पूछ रहे हैं. ये राइट्स है, अगेन राइट्स, राइट्स, राइट्स. यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर पूछ रहे हैं, ठीक है. So you can bucket these PYQs under particular dimensions, right? And these are the few dimensions in fundamental rights. A few important constitutional articles, then you have nature and significance of fundamental rights, separation of power, executive, judiciary, legislative. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, in India 2020 में आया है, separation of judiciary from executive is enjoined by. तो ये you can bucket all the PYQs in certain buckets, right? So for example, constitutional articles से ये इतने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं. तो अभी आर्टिकल्स तो आप लाइक यू कैन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम फंडामेंटल राइट, एंड उसमें भी आर्टिकल्स पूछ रहे हैं. सो यू हैव टू बी अवेयर कि कौन से आर्टिकल. ये फ्यू इंपॉर्टेंट यू कैन सी हर बार आर्टिकल 19 कुछ आर्टिकल तो रिपीट ही हो जा रहे हैं. तो ये दीज आर्टिकल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव लाइक नोट्स फॉर दिस. ये फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चंस हैं. राइट्स, राइट्स, राइट्स. तो देयर आर सर्टेन राइट्स जो आपको लाइक यू हैव टू रिमेंबर देम बिकॉज क्वेश्चंस आ ही रहे. कहाँ से करोगे? अगेन फ्लैश नोट्स. फ्लैश नोट्स ये रहे सारे, जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, जिस डायमेंशन को पूछा हुआ है, सारा फ्लैश नोट्स में कवर्ड है. सो यू कैन सी एंड प्रॉपर्ली कवर्ड है. इस तरफ PYQs है, इस तरफ आपके फ्लैश नोट्स हैं. एंड दिस इज DPSP. सो दिस इज अगेन ऑल द PYQs जो मैंने अभी आपको बताया, एंड ऑल द डायमेंशंस ऑफ PYQs आर कवर्ड हियर, इंक्लूडिंग की ट्रेंड क्या है. तो यू कैन सी यूपीएससी का ट्रेंड भी वहां पे लिखा हुआ है कि वो यूपीएससी पूछता क्या है, क्या डायमेंशन है. दिस मेक्स योर प्रिपरेशन लाइक फालतू की चीजों से कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. यहां से पढ़ूं, वहां से पढ़ूं, इतना क्यों आपको कॉम्प्लिकेट करना है. मतलब देयर इज नो पॉइंट. अपनी मैंने बोला ना एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन कि हमको वी हैव टू गेट मोर क्लैरिटी. वी हैव टू, इफ आई एम एबल टू सी माई प्रिपरेशन स्ट्रेट विथ क्लियर व्यू, तो मेरी एंजाइटी एंड एवरीथिंग आई एम लाइक इट फील्स लाइक कि देयर इज अ सिस्टम विच टेक्स केयर ऑफ माई रैंडम वर्क. मेरा ध्यान बस पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है. तो इतनी रिसर्च करते रहोगे आप तो देयर इज नो पॉइंट. These things are already available. CD has done a great job to do this. तो आप यही फॉलो करो. There is no doubt about it कि इससे बेटर आपको कहीं मिले. So again DPSP मैंने आपको समझा दिया है. फ्लैश नोट्स का एक और खासियत है कि जब आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया, अब जैसे यही है फंडामेंटल राइट्स, हमारे लक्ष्मीकांत में ऑलमोस्ट 40 पेजेस है, 35-40 पेजेस है. That whole thing is covered in just 4 pages. ठीक है. And that's not the point. The point is कि ये वो covered है जो UPSC पूछे जा रहे हैं. So not that we have made it summarized. Summarized मतलब we never lost the essence of the content. ऐसा नहीं है कि कुछ important छोड़ दिया है. उल्टा हमने फिल्टर कर दिया कि यूपीएससी किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ ही रहा है या आगे पूछ सकता है, आप वही पढ़ो. सो यू कैन सी सारे आर्टिकल्स एक जगह हैं. अभी दिखाया मैंने आपको. लुक एट दिस. ये रहा आर्टिकल से क्वेश्चन. लुक, आई होप यू जस्ट गिव अ क्विक रीड. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. मैंने This is not an exhaustive list. मैंने कुछ ही एग्जांपल्स लिए because that much I could fit on the screen. तो वही है, but again whole of the thing is covered here. सारे आर्टिकल्स का सब कुछ. आर्टिकल 12, 13, I hope all of you can see it. So you can see article 12, 13, 14,
15, राइट? तो सारा कुछ कवर्ड है आपके प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए पॉलिटी का. सो अ बल्की बुक समराइज्ड और कंसाइज ससिंक्टली इन 4 pages, होल चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, फिल्टर्ड थ्रू व्हाट यूपीएससी नीड्स. इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है आप अपने खुद के 1 pager नोट्स बना लो. सो ये रैंकर के ही नोट्स दिखा रहा हूं मैं आपको, ये रैंकर्स के ही नोट्स हैं. यू कैन मेक योर 1 pager नोट्स लाइक दिस. ठीक है, इफ यू वांट टू यू कैन मेक योर 1 pager नोट्स. तो टू समराइज की प्रीलिम्स को कैसे करने हैं, सबसे पहले हमको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं. माइक्रो थीम की बुक उठानी है, आई होप एवरीवन हैज इट. वहां से हमको पीवाईक्यू लेने सॉल्व करने हैं. अगर हमारी एक्यूरेसी 80% तक आ रही है, मतलब हमको कंटेंट तो आता है, बस वी आर गेटिंग इट रॉन्ग फॉर सम रीजन. ठीक है, अब हम इस माइक्रो थीम को अच्छे से कवर करने के लिए रेडी है. दैट इज द स्टेज. नाउ हाउ डू वी डू दैट? वी पिक अप अ माइक्रो थीम. ठीक है, वी चेक एनालाइज ऑल द डायमेंशंस एंड वी डिवाइड द पीवाईक्यूज इन इजी, मीडियम, हार्ड. जो इजी क्वेश्चन है उसको आप स्टैंडर्ड बुक से कवर कर सकते हो. जो मीडियम और हार्ड क्वेश्चन है उसका कंटेंट आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलना रेयर है, मुश्किल है, या फिर आपको नॉर्मल रिसर्च करनी पड़ेगी इंटरनेट पे. वो नहीं करना है, बिकॉज वी एक्सेप्ट इफ इट इज करंट अफेयर्स, बिकॉज वी हैव पुट इट इन द फ्लैश नोट्स प्रॉपर. ये अपडेटेड है 2026 के लिए. ठीक है, 2026 एंड 27 के लिए. 27 विल ऑल्सो कम, दिस इज 26. तो एंड देन यू कवर ऑल दैट मीडियम एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चन का कंटेंट फ्रॉम द फ्लैश नोट्स. ये फंडामेंटल राइट्स, रिवर्स, जो मैंने एग्जांपल लिए. ठीक है, सो यू पिक्ड अप अ माइक्रो थीम, अटेम्प्टेड पीवाईक्यूज, एनालाइज द डायमेंशंस, कवर दोज डायमेंशंस थ्रू फ्लैश नोट्स फॉर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड एवरीथिंग. ठीक है, देन यू अटेम्प्ट सर्टेन मॉक टेस्ट. ठीक है, उसमें कुछ गलतियां होंगी, कुछ आपको कंटेंट ऐड करना है. इवेंचुअली ये सारा करने के बाद आपका एक 1 pager नोट्स होना चाहिए, विच इज दिस. इट शुड लुक लाइक दिस. तो दीज आर योर 1 pager नोट्स. ठीक है, ये पॉलिटी के ही 1 pager नोट्स है. तो इट शुड लुक लाइक एंड दिस यू कैन यूज फॉर रिवीजन. इसके आगे हमको बार बार लक्ष्मीकांत पे नहीं जाना है, बार बार किसी स्टैंडर्ड बुक्स पे नहीं जाना है. हमने सारा कुछ कवर कर लिया ना. जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे उसमें जो गलती हुआ उसका भी आंसर यहाँ पे लिखा है, सब कुछ लिखा है. तो बार बार स्टैंडर्ड बुक्स पे बार बार कहीं नहीं जाना है. इवन फ्लैश नोट्स पे भी जाने की जरूरत नहीं है आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू मल्टीपल रिवीजन फ्रॉम फ्लैश नोट्स. आखिरी का जो सोर्स ऑफ कंटेंट है वो आपका 1 pager ही है. इट विल मेक योर प्रिपरेशन रियली लाइक शार्प. ठीक है, आर वी क्लियर? ये 90% पार्ट है. अदरवाइज लाइक इफ यू थिंक कि मेरे पास प्रीलिम्स माइक्रो थीम का डॉक्यूमेंट है तो अब तो हो जाएगा, दैट्स नॉट ट्रू. आई होप दैट वाज, बट वो सिर्फ 10% पार्ट है. हमको प्रॉपर पकड़ के एक एक माइक्रो थीम को कवर करना है. ठीक है, और यही तरीका है. आप मुझे बताओ इसमें कुछ भी लूप होल, तो आपने कुछ भी छोड़ा, यू वर ऑलवेज वेरी क्लोज टू यूपीएससी. आप यू नेवर वेंट अवे फ्रॉम यूपीएससी व्हाट यूपीएससी वांट्स. इसमें से आप कुछ भी मुझे नहीं बता सकते कि ये तो आप एक्स्ट्रा करा रहे हो, ये तो कुछ अलग है. मैंने हमेशा हर चीज की बैकिंग पीवाईक्यू से ले रखी है. सो मतलब दिस इज द मोस्ट वाटर टाइट वे ऑफ प्रिपेयरिंग. कहीं से लीकेज ही नहीं होगा आपका. ठीक है, अब आप अपना पूरा दिन ऐसे डिवाइड कर सकते हो जो मैंने आपको बताया. स्पेशली 2027 फोक्स, आपके पास इनफ टाइम है. तो आपने देखो माइक्रो थीम ज्योग्राफी का उठाया. ठीक है, पहले दिन. दूसरे दिन आपने ज्योग्राफी की माइक्रो थीम में डायमेंशंस, पहले दिन आपने पीवाईक्यू एक्यूरेसी चेक करी, 15, 20, 30 पीवाईक्यू अटेम्प्ट करे. दूसरे दिन आपने उसके डायमेंशंस देखे और एनालिसिस किया, जो मैंने आपको समझाया था. रिवर सिस्टम में ट्रिब्यूटरीज हैं, स्टेट्स हैं, लेक्स हैं, एक्सेट्रा, नेचर पार्क्स एक्सेट्रा. थर्ड डे आप फ्लैश नोट्स कवर कर रहे हो, उन सारे डायमेंशंस को पढ़ रहे हो. उसके बाद आप फ्लैश नोट से 1 pager नोट्स बना ले रहे हो. इसके बाद आप मॉक टेस्ट दे रहे हो डोमिनेट प्रीलिम्स का और कवर. अब आप बोल सकते हो एक्चुअली में जेन्युइनली कि मेरी रिवर सिस्टम की माइक्रो थीम कवर हो गई है. आपने मुश्किल से 1-1 घंटे भी निकाल लिया ना, तो आपने 4 से 5 घंटे के अंदर एक इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम कवर कर ली है. मतलब ओवरऑल बोल रहा हूं मैं, ओवर अ वीक और 4-5 डेज, मुश्किल से 3 से 4-5 घंटे में आपने पूरी रिवर सिस्टम की माइक्रो थीम, जहां से हर साल क्वेश्चन आने ही है, वो आपने एग्जॉस्टिवली कवर कर लिया है. देयर इज नो लीकेज एनी मोर. दिस इज द वे टू स्टडी. पॉलिटी में देखो फंडामेंटल राइट्स में पीवाईक्यू का एक्यूरेसी चेक किया, डायमेंशन एनालिसिस किया, फ्लैश नोट से पढ़ाई की, अपने 1 pager नोट्स बनाए और उसके बाद अटेम्प्ट देके चेक कर लिया कि मेरे सारे सॉल्व तो हो रहे हैं कि नहीं. किसी टेस्ट सीरीज में दे दिया, पीवाईक्यू से ही देख लिया. आर वी क्लियर विद द वे? लाइक दिस इज द मोस्ट वाटर टाइट वे. यहाँ पे कोई लीकेज नहीं होगा एटसेट्रा. मैंने दोनों माइक्रो थीम लेके दोनों को पूरा लूप कैसे खत्म करना है समझा दिया है. स्पेशली ऑल्सो शोड यू द टाइम टेबल की हाउ इट शुड फिट इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, आई स्टार्टेड द सेशन विथ कि इंस्टिंक्ट को नहीं पढ़ना है, एग्जाम लॉजिक को यूज करना है. ठीक है, एक रूल बेस्ड सिस्टम है, दैट इज माइक्रो थीम. प्रीलिम्स का मैंने समझा दिया. अब मैं आपको समझाता हूँ मेंस का, कि मेंस को कैसे पढ़ना है. आपको प्रीलिम्स समझ में आ गया. सेम लॉजिक है. माइक्रो थीम की पीडीएफ सिर्फ 10% है. जैसे उसमें 111 था,
ये 177 माइक्रो थीम है, वी हैव टू कवर इज 177 माइक्रो थीम, ठीक है। नाउ देखो होता क्या है, यू पिक अप अ माइक्रो थीम, आई एम समराइजिंग द होल थिंग अगेन, पिक अप अ माइक्रो थीम, सी द स्प्रेड ऑफ क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ए डायमेंशन पूछ रहा है, बी डायमेंशन पूछ रहा है, सी डायमेंशन पूछ रहा है, एटसेट्रा, ठीक है। वो आप फ्लैश नोट से कवर कर सकते हो। डिवाइड द क्वेश्चन इज इजी, मीडियम, हार्ड, ये मैंने आपको बता दिया। जो इजी है आपको 100% बनने चाहिए, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में होने चाहिए। जो हार्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां नहीं मिलेंगे स्टैंडर्ड बुक्स में, तो वो आप कहाँ से पढ़ोगे, फ्लैश नोट्स वगैरह से, ठीक है। आप अपने 1 पेजर नोट्स बनाओ, उसके बाद अपने लॉजिकल एलिमिनेशन की एबिलिटी को टेस्ट करते रहो, मॉक्स दो और ये लूप क्लोज हो गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट प्रीलिम्स वाज। मेंस के लिए देयर वर 177 माइक्रो थीम्स। सेम गलती नहीं करनी है, माइक्रो थीम को पढ़ना है, सिलेबस को नहीं देखना है। सिलेबस आपको पता है, ठीक है, सिलेबस इज अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, उससे कुछ ट्रेंड नहीं पता चलेगा आपको। सो ऑफ कोर्स वी रीड अराउंड 15 जीएस सब्जेक्ट्स और टोटल 177 माइक्रो थीम्स हैं जो मैंने आपको बताया। ये GS1 की माइक्रो थीम का डॉक्यूमेंट है। आई होप एवरीवन हैज दिस डॉक्यूमेंट, तो ये तो आपको पता ही है, लाइक आई एम श्योर एवरीवन नोज दिस। बट हाउ डू वी कवर अ माइक्रो थीम इन डेप्थ, ठीक है। तो लेट्स से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम, हमको सबको पता है। तो आप जब जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये माइक्रो थीम है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 2, ये एक्चुअल क्वेश्चंस है, दीज आर एक्चुअल PYQs 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे क्वेश्चंस में आप देखो ये लिखा हुआ है D1 D2 D3 D1 D2, ये दिख रहा होगा आपको। D1 इज नथिंग बट डायमेंशन 1, D2 इज नथिंग बट डायमेंशन 2। तो हर PYQ में मैंने फिर से सेम चीज करी है, क्या डायमेंशन पूछ रहा है वो। पहले में पूछा है चैलेंज फेस्ड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंप्रूव, ये दिस डायमेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्चुअल PYQ ऑफ UPSC, ठीक है, वहीं से ही है। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू पिकिंग अप अ माइक्रो थीम, लेट्स से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यू आर लिस्टिंग डाउन ऑल द PYQ एंड देन उसके डायमेंशंस आपके सामने, ठीक है। नाउ यू विल हैव टू, ऑब्वियसली यू विल बी कवरिंग ऑल दीज डायमेंशंस। जो इजी है वो स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा, आपके नोट्स में मिल जाएगा। जो नहीं है वो आपको अगेन एक्स फैक्टर नोट्स में मिल जाएगा। जब वो हो जाए तो अपने स्मैश मेंस के मॉक टेस्ट लिखो, या जो भी मॉक टेस्ट है PYQ के आंसर लिखो, चेक कराओ, मेंटर के सामने बैठो और आगे बढ़ो, आपकी माइक्रो थीम की लूप कवर हो गई। जो मेन एस्पेक्ट है वो 2 है, माइक्रो थीम को आइडेंटिफाई करना और उसके डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना। यहां गलती करोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये नहीं करना है। सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो अगेन कैसे करोगे, चूज द सब्जेक्ट अलाइन विद द माइक्रो थीम। एक माइक्रो थीम पिकअप करो, जैसे हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करी थी, उसमें आप उसके डायमेंशंस को डिवाइड करो, उस डायमेंशंस को एक्स फैक्टर नोट्स या स्टैंडर्ड बुक्स या बर्निंग इशू मैगजीन से कवर करो। फिर उस कवर कर, अब आपने पढ़ाई कर लिया प्रॉपर्ली, अब आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, इवैल्यूएशन कराओ और PTD मतलब पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, मेंटर के साथ बैठ के आप डिस्कस करो, ठीक है। सो जितना भी 1 पेजर नोट्स बनाने से पहले इन सब आपके क्या रैंडम नोट्स बनेंगे। आपने लक्ष्मीकांत उठाया, उसी के नीचे हाईलाइट कर लिया, 15 दिन बाद उसी को किसी में लिख लिया। ये अनऑर्गेनाइज नोट्स से बेटर है जो ऑलरेडी रिसर्च्ड PYQ बैक्ड नोट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रीली अवेलेबल एट CD। तो आप ये चुप लाइक सिंपली जस्ट डाउनलोड, एक्स फैक्टर ले लो, प्रिंट आउट कराना है तो यहाँ दिल्ली में करा सकते हो। तो ये सब रेडी नोट्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बल्कि कंटेंट दिया है, सब कुछ वेरीफाइड बाय UPSC है, मतलब बैक्ड बाय UPSC PYQ है, दैट्स व्हाट आई मीन। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रैंडम कुछ भी होगा। एक्स फैक्टर नोट्स में ये जो सारी चीजें आपकी सारी बुक्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्स फैक्टर, ठीक है। एंड एक्स फैक्टर नोट्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, इट विल हेल्प यू इंप्रूव एटलीस्ट 1.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ यूर राइटिंग समथिंग ओरिजिनल। आपके जो अगर आप कोई बच्चा 5 डायमेंशंस लिख रहा है एक मेंस के आंसर में, एक्स फैक्टर आपको हेल्प करेगा कि 2-3 और ओरिजिनल पॉइंट्स दे देगा, यू विल एंड अप राइटिंग बेटर आंसर्स देन अदर, राइट। सो ये एक रैंकर के ही नोट्स है, ये एक्चुअल एक्स फैक्टर नोट्स है। यू कैन सी रॉक कट आर्किटेक्चर का ये एक्स फैक्टर नोट्स है, एंड यू कैन सी रॉक कट आर्किटेक्चर। आप इंफॉर्मेशन तक मैप कर सकते हो, you can map information also, like Barabar caves and Nagarjun caves. So you can see Barabar caves and Nagarjun caves in Bihar. This is a ranker from UAP program, शिवाली, and उन्होंने सीधा एक्स फैक्टर से ही अपने 1 पेजर नोट्स बनाए हुए। ये ऑलरेडी she has qualified the exam, and I can keep going. So स्तूपा ये सब एक्स फैक्टर के ही नोट्स बनाए हुए हैं। मतलब you can do like इतना, you don't have to do color annotation etc. But the point is कि all the notes are derived from there itself. This is how rankers are making notes. यहाँ पे आप देख लो टेम्पल आर्किटेक्चर का है, चोला वगैरह का पूरा लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सब कुछ लिखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो चोला एंड ड्रेविडियन स्टाइल, यहाँ पे देख सकते हो ड्रेविडियन स्टाइल पूरा लिखा हुआ है,
मतलब इवन इफ यू डोंट वांट टू मेक योर वन पेज नोट्स, विच आई थिंक यू शुड, बिकॉज रिवीजन में काफी हेल्प होती है, बट फिर भी आप यहाँ पे तो हाईलाइट कर ही सकते हो. तो अगर आप इफ यू आर स्टिल लेजी कि नहीं मुझे इतना नहीं करना है, तो भैया यहाँ पे तो आप हाईलाइट कर ही सकते हो. यार एक्सपेक्टर तो ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दी है. फ्लैश नोट्स और एक्सपेक्टर ने तो आपका दिस मेक्स योर प्रिपरेशन लाइक ऑलमोस्ट बिल्कुल ही फ्रिक्शन ही खत्म है. तो यहाँ पे अगेन सेम चीज है, माइक्रो थीम पी उठाना है अपने को मेंस की, उससे हमको देयर इज अ लेक्चर ऑल्सो यू कैन अटेंड बाय द वे. इसमें PYQ के एक लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे आपको सारे PYQs लिखवा देते हैं. सारे PYQs में क्या टेम्पलेट्स हैं आंसर के वो बता देते हैं, और कैसे हर एक PYQ से आपको उसकी थीम और डिमांड, ये जो मैंने बताया था ना आपको, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है. बिकॉज बहुत सारे बिगनर्स को ये भी नहीं आता है कि इसमें से मैं कैसे डिमांड निकालूं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो. यू कैन अटेंड दीज सेशंस, राइट. वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट आर्ट की मेरे को हर PYQ से कैसे निकालना है, आप सिंपल है वो डिमांड कहाँ से कवर करोगे, डायमेंशंस कहाँ से कवर करोगे, एक्सपेक्टर से यानी स्टैंडर्ड बुक से. बर्निंग इशू करंट अफेयर्स सॉल्व कर देगा आपका. एंड देन यू राइट मॉडल आंसर्स, लाइक राइट PYQ आंसर्स और अटेम्प्ट स्मैश मेंस के क्वेश्चंस, एंड देन इवेंचुअली you should be able to close the loop. ठीक है, same thing, that is the idea here, right? So have you understood how to close mains का loop? Prelims we have done, we have understood the mains का, right? So unorganized या self taught तरीके से पढ़ने से अच्छा है you should have someone helping you, making sure that ये सारी चीजें आप सिस्टम में. So what we do is, this is the first test. This person is preparing, picking up each micro theme. ठीक है, उसके डायमेंशन क्रैक कर रहे हैं, ये देख लो. उनके तरीका ही ऐसा हो गया कि दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट डायमेंशन ऑफ ईच क्वेश्चंस. फिर वो आंसर लिख रहे हैं, उन डायमेंशंस को एक्सपेक्टर वगैरह से कवर कर रहे हैं. इवेंचुअली द स्टेज इज टू अटेम्प्ट टेस्ट. दिस इज द फर्स्ट टेस्ट. लुक एट द मार्क्स, ये राइट साइड पे आप देख सकते हो 2-2.5 मार्क्स है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट टेस्ट. ठीक है, फोर्थ टेस्ट तक ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं मार्क्स. You can see the way of writing more succinct, more highlighted, more meeting the demand of questions rather than बस blur out कर दिया questions को. ठीक है, answers को, तो वो नहीं करना है. And this happens when you are preparing, covering all the dimensions, when there is a system that you are following and हर कुछ, right? And we like you can see that ये copy जो है हर एक test के बाद these are the kind of issues that we have identified. ये पहला है, ये दूसरे टेस्ट के, तीसरे टेस्ट के बाद है, ये फोर्थ टेस्ट है. ठीक है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, ये सिक्स्थ टेस्ट है. ठीक है, तो इट कीप्स ऑन गोइंग. सो हर टेस्ट का लॉग्ड है कि हाउ द PTD's पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, हाउ द इम्प्रूवमेंट इज हैपनिंग एटसेट्रा, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो डोंट जस्ट गो फॉर सम रैंडम बुक्स या फिर कोई भी रैंडम अटेंड कर लिया. अपनी प्रिपरेशन बहुत ही क्लियरिटी से करना है आपको. इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. मैंने आपको सिंपल बता दिया. हमने आपको ऑलरेडी ये काम करके दे दिया है प्रीलिम्स और मेंस. सारा कुछ बैक्ड बाय PYQ है. कीप योर प्रिपरेशन वाटर टाइट. हर एक माइक्रो थीम को उठाना है प्रीलिम्स की, हर एक माइक्रो थीम को उठाना है मेंस की. मैंने ओवरऑल टाइमलाइन भी दे दी थी आपको, दिसंबर से लेके अगले साल तक का कब से कितना कवर करना है. इनके डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है. वो डायमेंशंस हमको स्टैंडर्ड बुक्स, NCERT, फ्लैश नोट्स और एक्सपेक्टर नोट से कवर करने हैं, वो भी अवेलेबल है. उनको कवर करने के बाद हमको फिर से अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, असेसमेंट करना है, आंसर लिखना है. या तो फिर आप नहीं करना है अगर आपको वो, तो फिर PYQ अटेम्प्ट करो और फिर देखो एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं. यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है आपकी प्रिपरेशन में. देयर इज नो वे आप इसमें डीरेल हो पाओगे. मतलब फालतू का मैंने लक्ष्मीकांत बुक 3 बार कवर कर ली. अरे तो लाइक हैव यू कवर्ड ऑल द माइक्रो थीम्स? डू यू नो व्हाट इज माइक्रो थीम? क्या फर्क पड़ता है यार. मतलब आपकी प्रिपरेशन माइक्रो थीम बेस्ड ही होनी चाहिए. आई विल अगेन शो यू what I showed you at the start of the session. Like there are a lot of people who prepared in a completely different way, but if they follow the same system, all of these people are giving first time interview. आप देख लो, ये 2025 के बच्चे हैं यार. So these people are ये पहली बार एक systematic way से prepare कर रहे हैं. इनको पता है कि इन्होंने अपनी preparation ही predictable बना ली है पूरी. मुझे पता है अगर मैं इतना कर लूंगा, that's why I'm using the term watertight. ये सब पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं. इसके पहले उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया UPSC का. मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ देम विल हैव अ नेम इन द लिस्ट अभी 1-2 महीने के अंदर, जब मैं सॉरी बाय मार्च व्हेनेवर द रिजल्ट कम. सो लाइक स्टडी like someone who has figured out the system, right? So this content plus some kind of post-test discussion, some kind of
फॉल्ट फाइंडिंग इन कोर्स करेक्शन की यार आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये सब इशू हो सकता है एक्सेट्रा. दैट इज व्हाट इज नीडेड एंड दैट्स व्हाट वी डू. वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग द सेम बैच. यूएपी का 2027 का बैच है, राइट? इफ एनी ऑफ यू हैव, व्हाई वी आर सेइंग रिकवरी बैच, अगर अभी तक टाइम खराब कर लिया स्पेशली फॉर 26 ऑल्सो और 27, प्लीज मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट टॉक टू मी वंस. टेल मी आप कहाँ पे फंस रहे हो. ये रहा मेरा नंबर, ठीक है? दिस इज माई नंबर. प्लीज राइट डाउन एंड प्लीज हैव अ वन कन्वर्सेशन विथ मी कि सर मेरे पास माइक्रो थीम डॉक्यूमेंट है, फिर भी मैं फंस रहा हूँ या मेरे को इशू हो रहा है, ठीक है? या फिर अब अगर आज आपको डायमेंशन समझ में आ गए कैसे पढ़ना है, तो एटलीस्ट नाउ स्टार्ट, ठीक है? एंड व्हेन इट कम्स टू फ्लैश नोट्स, एक्स फैक्टर, वहां पे भी बात नहीं रुक जाती. इवेंचुअली यू हैव टू अटेम्प्ट टेस्ट. तो या तो डोमिनेट प्रीलिम्स का टेस्ट अटेम्प्ट करो या स्मैश का अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो भी थीम बेस्ड है, माइक्रो थीम बेस्ड है. डायमेंशन उसके भी आपने जो भी डायमेंशंस आइडेंटिफाई करे हैं, वो ईच क्वेश्चंस विल टेस्ट यू ऑन ऑल द डायमेंशंस. बस एक साल मेहनत करो यार, अच्छे तरीके से पढ़ो, रैंडम इधर उधर मत पढ़ो, बिल्कुल साइंटिफिक वे से ब्रेक डाउन करके मैंने आपको समझा दिया है. इसमें से कुछ भी लीकेज नहीं है, कुछ भी मतलब रैंडम आपको नहीं फील हुआ होगा कि मैंने कुछ भी इधर उधर आपको पढ़ने के लिए बोला है. I've always kept you close to UPSC, what they're trying to do, what they have asked in the past basis PYQ in prelims and mains. और हम वैसे ही पढ़ रहे हैं. At least give me a call, talk to me अगर आपको लगता है फंस रहे हो. If you are struggling on your own खुद से पढ़ाई करने में, then go ahead with UAP. We are launching a batch for January for 2027 and 26 is also going on. And if you are struggling financially ऐसा कुछ है तो avail for scholarship, right? There will be some kind of assessment. थोड़ा बेसिक सा टेस्ट होगा एंड यू कैन गिव दैट टेस्ट एंड अवेल सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप.